So, a very good morning to all of you. Today we have our honorable keynote speaker, Professor B.P. Suneja, uh, Architect Rahul Singhi, Director Purnima Group, Dr. Dinesh Goyal, Principal and Director of Purnima Institute of Engineering and Technology, and all my dear participants. I, Dr. Pran Dadij, Head of Civil Engineering Department, warmly welcome you all in this current session of webinar. This webinar is organized by Department of Civil Engineering of Purnima Institute of Engineering and Technology. Purnima Institute have 60% NB accredited department and a NET accredited institute. I proudly share the Department of Civil Engineering first NB accredited department under Rajasthan Technical University as well as in the private college in Rajasthan. So today's webinar is on COVID-19 disaster. And we have with us Professor Suneja, and I feel proud to introduce Dr. B.P. Suneja, Professor in Civil Engineering Department of Rajasthan Technical University, Kota. Presently, he is working as a Dean and Faculty of Engineering and Architecture in the university and also as University Coordinator for Universal Human Value Programs and Induction Programs of AICTE. Dr. B.P. Suneja has several research papers in reputed international and national journals, as well as in international and national conferences. His research interest area is earthquake disaster management. He has been one of the state resource person for National Disaster Management Program and has trained more than 150 field engineers through short-term disaster management programs. Dr. Suneja has 35 years of teaching experience, which includes working in various important capacities such as controller of examinations, dean student welfare, department head and chair, and head of training and placement division of faculty. Now, I request Dr. Suneja to please start his webinar on great challenge to mankind. Please. Thank you. Thank you for wonderful introduction. So I welcome you all, dear participants. Basically, when Pooja asked me to give some lecture, so it's very difficult to decide the topic. So I thought, and I worked on that for quite a week, because for a particular lecture, when the target group is mixed, faculty members are there, students of all the classes are there, might be some field engineers must be there. So it's very difficult how to go for a lecture. So I tried my best. Hope it will be interesting and useful for all the group of the people who are attending this program. So the topic is COVID-19 disaster, the great challenge to mankind. So basically, I have tried to correlate this COVID-19 with the existing knowledge of disaster management. And then what are the effects a civil engineering professional, in the perspective of civil engineering professional, I have confined the lecture. So hope you will find it useful information. So COVID-19 disaster, the great challenge to mankind. So it's a very important thing. You should understand that nature is the cruelest killer. True. हम मान सकते हैं कि प्रकृति जो है वो कई तरह की आपदाएं देती है, वो एक cruelest killer भी हो सकती है, लेकिन but it never means that human should aid to its destruction. तो जितने destruction, damages, loss of life लिखे हैं वो तो हों, लेकिन एज मानव हमारा एक कर्तव्य है कि हम उसमें कुछ और एडिशन ना करें, उसको रोकने का प्रयास करें. This is the aim of all disaster management. Now, as far as the contents are concerned, COVID-19, I am discussing it in the perspective of a civil engineering professional, because most of the participants are from the civil engineering stream. And then finally, we'll see how we can turn these challenges into opportunities. So what are those areas by which we can turn these challenges? First, we'll discuss these challenges which occurred due to COVID-19, and then we will find out the ways how we can cope up with those challenges. So these are the major contents. First, we'll discuss the disasters in general and where the COVID exists in the system of disasters.
And then we'll try to define the COVID-19. What is the difference basically between epidemic and pandemic? Then where do we lack? क्या कमियां हैं हमें? Then what is the importance of sustainable development with regard to these disasters? And then finally the challenges. What are the major challenges as civil engineering professional? And then concludingly, we'll try to find out the various opportunities by which we can turn these challenges into opportunities. So disasters and its classification, I'll go quickly from this because most of you are aware. But one thing is there, that disaster in general, if say, these are the part of the environment in which we live since time immemorial. जब से सभ्यता का विकास हुआ है तब से डिजास्टर उसके साथ जुड़े हुए हैं. And the important thing, they do not discriminate between the countries or the people on the basis of caste, creed or religion. So यहाँ पर सब ग्लोब की बाउंड्रीज खत्म हो जाती हैं once the disaster occurs, like COVID-19 as you have seen. And the question is who is responsible? Because unless we find out the responsibility or responsible factors, we cannot find the solution of that. So यदि हम पीछे पलट के देखें मानव सभ्यता के विकास को, तो we'll find that apart from environmental and tectonic and other natural processes, वो तो प्रकृति की वो है जो प्राकृतिक वे में आकर होने ही है, लेकिन उसके बाद जो मेंस इंक्रीजिंग इंटरफेरेंस विद द नेचर, कोविड में भी लागू होता है. हमने जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है हद से अधिक, सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन इन द नेचुरल प्रोसेसेस, जितने नेचुरल प्रोसेस जो एक प्रकृति के द्वारा चल रहे थे उनमें हमने इंटरवीन किया, उनको मॉडिफाई किया, चाहे वो पानी की नदियों का बहाव हो, चाहे जो भी हो, देयर आर वेरियस नेचुरल प्रोसेस, उनको हमने मॉडिफाई किया. एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज अनदर फैक्टर फॉर इंक्रीज इन द डिजास्टर्स year by year. Then adoption of new technology in an unplanned manner. This is the area to which we are all concerned. That applying the technology without any knowledge in unplanned manner always lead to disaster. So we should be cautious enough while using the technology, and we should not go in the race of the development and blindly we follow these technologies without knowing the consequences of that. So degradation of ethical values. This is another area of the human values to which now the government and the various MHRD, AICT, all are concerned, because this is the major factor by which, क्योंकि आप ये देखें एक इंजीनियर और डॉक्टर में फर्क ये होता है कि डॉक्टर एट ए टाइम एक आदमी की जिंदगी के साथ खेलता है, लेकिन एक इंजीनियर जो है वो हजारों लोगों की जिंदगी के साथ खेलता है अपने कंट्रीब्यूशन से एट ए टाइम. यदि उसने एक ब्रिज डिजाइन किया, उसमें यदि वो फेल होता है, so he is putting the life of so many people in danger. So इस हिसाब से the ethical values are also important. Next is the that necessity. Now what is the necessity of these managing these disasters? Because if we see the history, we have seen that the most serious part of disaster is that the reverse years of development effort within no time. कि जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं, जितना विकास करते हैं, वो जैसा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपने फर्स्ट एड्रेस में भी कहा था, यदि हमने इसको सावधानी से टेकल नहीं किया तो हम आज से 20 या 30-23 साल पीछे चले जाएंगे. सो दैट इट मीन्स कि एक डिजास्टर के डिजास्टर्स कैपेसिटी इतनी है कि वो हमको वर्षों पीछे धकेल सकता है विकास के नाम पर. इसके अलावा गवर्नमेंट हर साल इस पे करोड़ों रुपया बजट का काफी अमाउंट जो है इसको मिटिगेट करने में खर्च करती है, जबकि वो मुझसे हमारा विकास कर सकते थे. These disasters have put a serious question mark. अब प्रश्न ये उठता है कि ये सब कुछ होते हुए भी where we are responsible. यदि हम देखें तो हमारे जो सोशो इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल फैब्रिक, जो हमारा तंत्र है, शिक्षा तंत्र है, चाहे आर्थिक तंत्र है, चाहे सामाजिक तंत्र है, उस ढांचे को कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लग रहा है. तो इट नीड टू बी redefined. A little difference because people confuse like the earthquake magnitude and intensity, like similarly the hazards and disasters.
So quickly I'll define that hazard, जिसको हम हिंदी में विपदा भी बोलते हैं. The dangerous physical event or human activity, natural or man-made, with the little or no warning. So this is one activity. Earthquake आया वो एक activity है. लेकिन उस एक्टिविटी में इट हैज गॉट द पोटेंशियल टू कॉज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन. उसमें इतना सामर्थ्य है कि वो सर्वत्र उसमें तबाही मचा सकता है. तो इस तरह का जो एक्टिविटी होती है या जो इवेंट होती है उसको हम हजार्ड बोलते हैं. और जिसको हम आपदा कहते हैं, डिजास्टर, दिस इज बेसिकली द फ्रॉम फ्रेंच वर्ड. दिस मीन्स बैड एंड एस्टर मीन्स स्टार्स, बैड स्टार, सितारे खराब हैं, ये हमारे कहावत में भी आता है. सो डिजास्टर अकर्स व्हेन द इम्पैक्ट ऑफ ए हजार्ड ऑन ए सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज सच दैट इट लीड्स टू कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन इन विच द डे टू डे पैटर्न ऑफ लाइफ इज सडनली डिस्टर्ब्ड. तो इस तरह की एक्टिविटी जिसकी वजह से हमारी दिन भर की दिनचर्या ही पूरी डिस्टर्ब होकर रख जाए, जो आपने कोविड-19 में ऑब्जर्व किया होगा. एंड द पीपल वर अनेबल टू कोप विद द सिचुएशन यूजिंग देयर ओन रिसोर्सेज. अब हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको यूज में लेते हुए भी यदि हम उस सिचुएशन को फेस नहीं कर पा रहे हैं तो उस सिचुएशन को हम डिजास्टर कहते हैं. तो ये हजार्ड और डिजास्टर में डिफरेंस है. जरूरी नहीं है कि हर हजार्ड डिजास्टर हो, और जरूरी नहीं है एक पर्टिकुलर इवेंट हमेशा डिजास्टर हो, कभी नहीं भी हो सकती. अर्थक्वेक जंगल में आए तो इट इज नॉट डिजास्टर, अर्थक्वेक बस्ती में आएगा तो इट्स ए डिजास्टर. सो ये फर्क है हजार्ड और डिजास्टर में. एंड द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज दैट द मोस्ट लाइकली विक्टिम ऑफ दिस डिजास्टर इज द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी विच इज वेरी लार्ज ग्लोबली. ये इसके सबसे ज्यादा सफरर होते हैं. जैसा हमने अभी देखा ही होगा लॉकडाउन के टाइम जो मजदूरों को मुसीबत झेलनी पड़ी, वी आर कंफर्टेबल इन दैट रेस्पेक्ट. सो द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और जितने ज्यादा लोग सफर करते हैं डिजास्टर की जो सीवियरिटी है वो उतनी अधिक होती है. Now, if we go through the classification of disaster, then we'll find out that there are two types, natural and man-made, depending upon the event. कि उसका सोर्स क्या है. यदि उसका नेचुरल डिजास्टर है और यदि उसका सोर्स जियोलॉजिकल है, लाइक अर्थक्वेक हुआ, वोल्केनोज हुए, सुनामी हुई, लैंडस्लाइड हुए, ये सब जियोलॉजिकल एक्टिविटी की वजह से जनरेट होते हैं, तो इनको हम इस कैटेगरी में डालते हैं. बायोलॉजिकल है, जो ऑर्गेनिक या बायो ओरिजिन होता है, जिनका एपिडेमिक्स, पेंडेमिक्स comes under this category. Of course, the COVID-19 comes under the biological disaster. Plant, animal contagion की वजह से होता है, insect, plagues, etc. So these are the few examples of the biological disaster. And similarly, hydrometeorological disasters, जो जल और मौसम से रिलेटेड होते हैं, जैसे फ्लड हुआ, साइक्लोन हुआ, सूखा हुआ, like that. These are the hydrometeorological disaster depending upon their sources. In fact, it is the main. So this is important thing that it is with this discussion we can conclude that in fact it is the man who converts most of the hazardous event into disasters. जैसा मैंने आपको hazard और disaster में फर्क बताया, उस हिसाब से हमें लगता है कि हम ही responsible है कि किसी disaster event को हम, किसी hazardous event को हम disaster में convert कर रहे हैं. So हमें हमारा रोल सुनिश्चित करना होगा. उसी एरिया की तरफ हम ध्यान दिलाएंगे इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे. दूसरी कैटेगरी है मैन मेड डिजास्टर की, जैसे वार और टेररिस्ट एक्टिविटी हुई. दीज आर प्योरली मैन मेड डिजास्टर. एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, वी कैन नॉट से दैट इट्स ए नेचुरल डिजास्टर, बिकॉज एनवायरमेंटल का डिग्रेडेशन व्यक्ति ने किया है, मानव ने किया है. सो दिस इज मैन मेड डिजास्टर. इन फैक्ट I should say that all disasters are man-made. तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति ना होगी, क्योंकि एक इवेंट है, इवेंट को हजार्डस इवेंट को कन्वर्ट डिजास्टर में तो हम ही कर रहे हैं, हमारी लापरवाही से, हमारी इग्नोरेंस से, हमारी अनअवेयरनेस से. एंड नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट्स. सो ऑल दीज आर द कैटेगरीज ऑफ द man-made disasters. In fact, the COVID-19 pandemic sweeping across the world is a crisis of our making. And now don't know whether we should call the COVID-19 pandemic as biological or technobiological or man-made disaster.
मैं उसको किस कैटेगरी में रखूं जब तक मुझे उसका कारण मालूम नहीं। क्या ये वायरस नेचुरली जनरेट हुआ, क्या इसको लैब में बनाया गया, क्या ये एक मिस हैपनिंग है, सो या एक नेचुरल प्रोसेस का एक बाई प्रोडक्ट है। So unless we come to know, I cannot say whether COVID-19 is a biological, technobiological or man-made disaster. Man-made disaster में war terrorist activity की बात करें तो as professional we have nothing to do with these disasters because these are mainly concerned with the national and international policies. As far as the environmental is concerned, here our role is very important. It happens due to pollution, misuse of water or energy, deforestation, unplanned exploitation of the natural resources. So these are the few human activities which led to environmental degradation. Now technological hazard की बात करें तो explosion, leakage of toxic radioactive material, transportation, fire, accident, all these comes under the टेक्नोलॉजिकल हजार्ड्स. सो चाहे वो मैन मेड हजार्ड है, उसमें एज प्रोफेशनल हमारा रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है. यदि हम हिंदुस्तान में हजार्ड वल्नरेबिलिटी की बात करें, वल्नरेबिलिटी मतलब किसी तरह का डिजास्टर आने की कितनी अधिक संभावना है एक पर्टिकुलर एरिया में. तो इंडिया जैसे कहते हैं हमारे विविधता में एकता का देश है, तो इसकी जो टिपिकल जियो फिजिकल लोकेशन है, नॉर्थ से साउथ चलें या ईस्ट से वेस्ट चलें, हम पाएंगे कि इसकी जो जियो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, हाइड्रो क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो जो है चेंज होती जाती हैं, नॉर्थ से ईस्ट, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट. तो ये भी एक कारण हो सकता है कि इंडिया इज प्रोन टू ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ नेचुरल हजार्ड, चाहे वो अर्थक्वेक है, फ्लड है, सूखा है, एपिडेमिक है. ये जितनी तरह के डिजास्टर हैं इंडिया एज कॉन्टिनेंट सबको झेल चुका है. वी आर आल्सो प्रोन टू वेरियस टाइप्स ऑफ हेल्थ हजार्ड, और उसका कारण क्या है कि हमारी लैक ऑफ नॉलेज और अवेयरनेस है. अनडिसिप्लिन्ड है हम, हमारा एटीट्यूड कैजुअल है. आप इसको सीरियसली ऑब्जर्व करिए, लॉकडाउन पीरियड में आप बैठे हैं, हर आदमी मंथन कर रहा होगा कि ये क्यों हो रहा है, क्या होगा आगे. तो इसमें प्रश्न भी अपने दिमाग में आने चाहिए कि हाउ डिसिप्लिन वी आर, हाउ आवर एटीट्यूड इज रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड. हमारे जो इन जनरल आप देखेंगे इंडिया में एक जो चलता है एटीट्यूड है ना, दैट इज मोस्ट डिजास्टर्स. एज सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल भी मैं कहूंगा कि यदि जैसे हमारे वो हैंगिंग ब्रिज बन रहा था, ठीक है, तो सुना है ऐसा, नॉट फैक्ट. किसी ने पॉइंट आउट किया कि सर इसमें पिलर में क्रैक दिख रहे हैं, तो आंसर ऑफ द इंजीनियर विल बी अरे चलता है थोड़ा बहुत, प्लास्टर कर देंगे. सो ये जो कैजुअल एटीट्यूड है ना, इससे हमें बाहर आना होगा. वी हैव टू बी मोर रेस्पॉन्सिबल एज प्रोफेशनल, तभी हम इन चीजों पे नियंत्रण पा पाएंगे और आने वाली पीढ़ी को हम सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे. पुअर लिविंग कंडीशन ऑफ लार्ज अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. जैसा मैंने बताया डिजास्टर में जो मोस्ट सफर है दैट इज द अंडर प्रिविलेज सोसाइटी, और उसकी जनसंख्या, उसका क्वांटम बहुत अधिक है. तो ससेप्टेबल पर्सन की जो संख्या है वो बहुत अधिक है, तो डिजास्टर के और सीवियर होने के चांसेस अधिक हो जाते हैं. तो हमें उसको भी एक सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से हम उन्हें सशक्त करना पड़ेगा, तभी वो इन डिजास्टर सिचुएशन को अच्छे से फेस कर पाएंगे. हजार्ड वल्नरेबिलिटी इन इंडिया की बात करें तो ये एक फिगर है, 60% लैंड जो है अर्थक्वेक प्रोन है, 40 मिलियन हेक्टेयर विच इज 8% ऑफ द लैंड मास दैट इज प्रोन टू फ्लड. इसी तरह साइक्लोन भी जो हमारी 8000 किलोमीटर के लगभग एक लंबी कोस्टल लाइन है इंडियन बाउंड्री पे, विद 2 साइक्लोन सीजन, हर सीजन मतलब 2 साइक्लोन के सीजन उसमें आते हैं. सीवियरिटी कितनी है उस पर डिपेंड करता है, और डिजास्टर्स होंगे या नॉर्मल होंगे. इसी तरह सूखा भी हमारे 60% ऑफ द टोटल एरिया इज वल्नरेबल टू ड्रॉट. लैंडस्लाइड, हेल स्टॉर्म, दीज आर द टिपिकल फीचर ऑफ द हिली रीजन. ये भी होते ही रहते हैं. And man-made hazard in addition to that. Now, the COVID-19 pandemic has engulfed the entire world, making it a disaster in every sense of the word.
डिजास्टर की डेफिनेशन में जो जो सीवियरिटी उसमें लिखी हुई है वो सब कोविड-19 में झलक रही है, चाहे वो नंबर ऑफ फर्टिलिटीज हो, चाहे वो नंबर ऑफ अफेक्टेड पीपल हो, चाहे एरिया ऑफ द अफेक्टेड रीजन हो, सब दृष्टि से जो है ये इसमें हर वर्ड कोविड-19 में डिजास्टर की डेफिनेशन का हर वर्ड सार्थक होता नजर आ रहा है। I think you must be enjoying the information which I am providing. Might be जो जिनको मालूम है उनके लिए थोड़ा आसान हो सकता है, but just to connect with the main problem, this much introduction is necessary. Now we see, because हम कह रहे हैं पेंडेमिक होता है, कभी हम कहते हैं एपिडेमिक हो गया, तो ये क्या है, ये इसकी बाउंड्री मेरे को भी इंटरेस्ट लगा when I gone through these definitions. The rapid epidemic की बात करें तो the rapid spread of a disease to a large number of people within a short period of time and restricted to one region. Now region is the criteria, locality, community और country, जो कितने बड़े एरिया में फैल रही है उससे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एपिडेमिक है या पेंडेमिक है। फॉर एग्जाम्पल, an attack rate of more than 15 cases per 1 lakh people. यदि 1 लाख लोगों में केवल 15 प्रभावित हो रहे हैं फॉर 2 consecutive weeks, तो हम इसको एपिडेमिक कैटेगरी में डालते हैं। एक जनरल ब्रॉड लाइन है। और यदि इससे ज्यादा केसेस आपको 1 लाख पॉपुलेशन पे कॉन्जुगेटिव 2 वीक में मिल रहे हैं तो उसको पेंडेमिक डिक्लेयर करना पड़ता है। ये वही चीज है कि उसकी सीवियरिटी देख के डिक्लेयर किया जाता है कि इसको भी 11 मार्च को ही डिक्लेयर किया गया। इनिशियली इट वाज एपिडेमिक, देन 11 मार्च को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पेंडेमिक डिक्लेयर किया, लुकिंग टू द नंबर ऑफ पीपल, फैटेलिटीज एटसेट्रा। एक इवेंट है वेस्ट अफ्रीका एबोला एपिडेमिक की। इसकी वाई एक्सिस पे दिया हुआ है न्यू केसेस पर वीक और एक्स एक्सिस पे इसका ड्यूरेशन है। तो हम इसको देखें तो जनवरी 2014 में स्टार्ट हुआ और जो केसेस आ रहे थे वो कितने कम थे। फरवरी, अप्रैल, मार्च, मई, जून, जुलाई, मीन्स जनवरी से लेकर 6 महीने तक इसकी सीवियरिटी बहुत अधिक नहीं थी। लेकिन अचानक जुलाई अगस्त में आते ही नंबर ऑफ केसेस बढ़ने शुरू हुए, जो पीक पे 850-900 पर वीक के हिसाब से पहुंच गए और फिर थोड़े टाइम में पीक रहा इसका और देन इट स्टार्टेड कमिंग डाउन फॉलोइंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ऑल स्टैटिस्टिकल डेटा फॉलोज ऑलवेज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। और ये जो डिफरेंट कलर है वो डिफरेंट रीजन के हैं, डिफरेंट उस वेस्ट अफ्रीका रीजन में, कि ये जो एबोला एपिडेमिक हुआ था उसका किस तरह हुआ था। तो इतनी लॉसेस होने के बाद भी तो इससे डिसाइड होता है कि मतलब ये एपिडेमिक है या पेंडेमिक है। फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर आउटब्रेक ऑफ एपिडेमिक, यदि हम इस पे नजर डालें तो इन्फेक्टेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर सप्लाई, ये एक रीजन हो सकता है। माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन एनिमल्स लाइक रेट्स, मॉस्किटोज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, ये भी उसमें उसको फैलाने में, एक पर्टिकुलर एपिडेमिक जो एक जगह से जनरेट हुई उसको फैलाने में काफी मदद करता है। सर्टेन एपिडेमिक्स आर सीजनल, कुछ सीजनल भी होती हैं पर हैं एपिडेमिक, जैसे ये वूपिंग कफ हुआ जिसमें कफ काफी आता है, उसको जो स्प्रिंग के सीजन में होती है एपिडेमिक कभी एक एरिया में। पर चूंकि इन सब की क्या या तो वैक्सीन डेवलप हो चुकी हैं या मेडिसिन आ चुकी हैं, इसलिए हम इससे ज्यादा चिंतित नहीं होते। मीजल्स हैं, ये विंटर और मार्च के सीजन में होते हैं। इन्फ्लुएंजा, द कॉमन कोल्ड, ये दूसरे इन्फेक्शन है जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के हैं, वो प्रीडोमिनेंटली इन विंटर में होते हैं। आदमी बीमार भी होता है, कुछ उसकी रजिस्टिविटी होती है, इम्यून पावर होती है, कुछ दवाइयां ऐड करती हैं और वो इनसे बाहर आ जाता है। लेकिन कोविड के साथ ऐसा नहीं है, बिकॉज द ट्रीटमेंट इज नॉट डिफाइंड, दैट्स व्हाई। एपिडेमिक पेंडेमिक की जहां तक बात करें, पेंडेमिक डिसीज एंड एपिडेमिक दैट हैज स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया। तो एक तो एरिया बढ़ गया उसका, कॉजिंग लार्ज नंबर ऑफ फर्टिलिटीज, दूसरा नंबर ऑफ फर्टिलिटीज यानी मृत्यु जो हो रही है व्यक्तियों की, लॉस ऑफ लाइफ, वो भी बढ़ गई। एंड प्रिवेलेंट
थ्रू आउट द एंटायर कंट्री। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर रीजन में सीमित हो गई, ये पूरे कंट्री को कवर कर लेती है और हो सकता है पूरे वर्ल्ड को कवर कर ले, जैसा कि अभी कोविड-19 ने किया। A widespread epidemic with a stable number of infected people is not a pandemic। क्योंकि ये डिफाइन करना जरूरी होता है। कई बार आपने देखा होगा कि कहीं बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, तो जो अपना आपदा एवं प्रबंधन विभाग है, वो पहले डिसाइड करते हैं कि इसको हम डिजास्टर डिक्लेयर करें कि नहीं करें। क्योंकि जैसे ही किसी इवेंट को डिजास्टर डिक्लेयर किया जाता है, तो उस समय उसके नॉर्म्स अलग हो जाते हैं। जो हमें आर्थिक सहायता पहुंचानी है, जो मशीनरी वहां उपलब्ध करवानी है, जो सेंटर से एड आनी है, वो सब नॉर्म्स चेंज हो जाते हैं। तो काफी अध्ययन के बाद किसी हजार्डस इवेंट को डिजास्टर कहा जाता है। उसी तरह किसी एपिडेमिक को पेंडेमिक कब कहा जाए, इसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ डेटा कलेक्ट किए होंगे और उसके बाद इसको पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया। ह्यूमन हिस्ट्री, यदि हम पेंडेमिक की हिस्ट्री देखें, मैंने जैसा कहा, जब से मानव सभ्यता विकसित हुई है तब से हम इन डिजास्टर को झेल रहे हैं। लेकिन पहले क्या इनका इफेक्ट कम हुआ करता था, पर्टिकुलरली नेचुरल डिजास्टर का। बायोलॉजिकल का तो होता था, गांव के गांव उजड़ जाते थे, शहर के शहर पूरे शमशान में तब्दील हो जाते थे। तो ऐसी जो मेजर इवेंट्स थी जिनको हम पेंडेमिक कहते हैं, और जिसमें फर्टिलिटी के हिसाब से हम देखें तो 13th सेंचुरी 4751 में ब्लैक डेथ, प्लेग नाम से हुआ था, जो हम हमारे पूर्वजों से भी सुने थे। हमारे दादा दादी ने बताया था कि एक बार इस साल में कभी उनको उनके पूर्वजों ने बताया होगा कि प्लेग आया था और उसमें 200 मिलियन 200 मिलियन पीपल की डेथ हुई लगभग। ये अप्रोक्सीमेट फिगर है। स्मॉल पॉक्स, फिर ट्यूबरल टीबी, ये 1520 के समय में आई, 1520 में, जिसमें 56 मिलियन फर्टिलिटीज वर रिकॉर्डेड। कोलेरा, हैजा, आज की डेट में हैजा का पूरा वैक्सीन भी है, इलाज भी है। इन सब बीमारियों के रादर इन्हीं से हम सीखे हैं, बिकॉज वी ऑलवेज लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। तो कोलेरा जो 1817 से 1923 काफी लंबे समय तक रहा, उसकी भी वैक्सीन नहीं बन पाई और इसने 10 मिलियन पीपल की जान ली। इन्फ्लुएंजा, जिसको स्पेनिश फ्लू भी कहते हैं, ये 1918 में आया, 19th सेंचुरी में, जिसमें 40 से 50 मिलियन लोगों की को अपनी जान गंवानी पड़ी। HIV एड्स, ये हमारी जनरेशन के हैं, ये सारी एपिडेमिक्स, पेंडेमिक्स, ये 1981 में आया और अभी भी चल रहा है। मीन्स ऐसी कोई वैक्सीन शायद नहीं बन पाई है, मेरी मेडिकल नॉलेज कम है, ऐसा नहीं कह रहा मैं, पर क्योंकि अभी भी इसके लोग बाग शिकार हो रहे हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसका अभी भी गुंजाइश है इसमें R&D की। इसमें भी अब तक 2 लाख जाने जा चुकी हैं, और कोविड-19 में तो आप देख ही रहे हैं, रोज फिगर बढ़ रहा है। 3.5 लाख जब प्रिपेयर कर रहा था मैं, हो सकता है इससे भी अधिक एक्सीड हो गया हो। सो और ग्लोबली, मतलब विदाउट लुकिंग टू द बाउंड्रीज ऑफ वेरियस कंट्रीज, हम मानवों की जान गंवा रहे हैं इस पेंडेमिक। अब प्रश्न उठता है कि ये जो कोविड-19 डिजास्टर है, इसमें हम लेग कहाँ कर रहे हैं। एज सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि न तो हम हेल्थ इश्यूज पे ज्यादा कमेंट कर सकते हैं, न मेडिकल फैसिलिटीज पे कर सकते हैं, न गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उस पर ज्यादा कमेंट कर सकते हैं। बट बिकॉज एज सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल वी आर मच कंसर्न कि हमारे ऊपर इसका इफेक्ट क्या आ रहा है। एजुकेशन सेक्टर में भी आ रहा है, नो डाउट। सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल चाहे, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, वो बहुत बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करती है GDP ऑफ एनी पर्टिकुलर कंट्री। तो यदि उस पर कोई इफेक्ट आ रहा है तो उसके लिए हमें सीरियस मंथन करना जरूरी है। तो वो कुछ पॉइंट मैंने कलेक्ट करके आप लोगों से शेयर करने का प्रयास किया है इसमें। सो हम कहाँ लेक कर रहे हैं, तो इस लेक करने के पहले हम ये जाने कि वेयर डू वी लेक। तो इट अपियर्स, अब सीरियसली अंतःकरण से यदि चिंतन करेंगे तो आप पाएंगे कि आवर अनविलिंगनेस टू रेस्पेक्ट द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन आवरसेल्व्स, स्वयं में, अदर एनिमल स्पेसीज एंड द नेचुरल वर्ल्ड। एक तो हमारे पास ये प्राकृतिक
ईश्वर की देन है, प्रकृति, वो। दूसरा जो दूसरे हमारे जानवर या डिफरेंट एनिमल स्पेसीज हैं वो, और एक हम स्वयं। इन तीनों में जो संबंध होना चाहिए, इन तीनों में जो रिलेशन होना चाहिए, इन तीनों के प्रति जो व्यवहार होना चाहिए आपस में परस्पर, उसका रेस्पेक्ट करने की हमारी कहीं ना कहीं अनविलिंगनेस दिखती है। यदि हम प्राकृतिक वो जो दोहन कर रहे हैं मिनरल का, तो हम भूल जाते हैं कि हम नुकसान क्या होगा उसका। तो वही है, हम टेक्नोलॉजी को तो एडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेज पे आज तक नजर नहीं डाली, और उसका दुष्परिणाम है कि हमें ये नए नए तरह के डिजास्टर हमें दिन प्रतिदिन झेलने पड़ रहे हैं। और यदि हमारी अवेयरनेस की यही स्थिति रही, तो कोई वो जिसको प्रलय बोलते हैं उसके आने में कोई देर नहीं लगेगी। तो इट इज द हाई टाइम, इट इज द राइट टाइम दैट वी शुड थिंक ऑफ इट एज प्रोफेशनल, एज एजुकेटेड पीपल। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं अधिक हो जाती है कि हम आने वाली जनरेशन को हम उन चीजों से अवगत कराएं जो गलतियां हमने की हैं, उससे उनको समझाएं कि ये गलतियां ना हो, क्योंकि ये डिसीजन सब एज पॉलिसी मेकर ही लेते हैं सब, और हम लोगों में से ही आकर जाकर वहां पॉलिसीज बनाते हैं। तो यह आवश्यक हो गया कि हमें इन चीजों पे मंथन करना जरूरी है। और इनके पीछे, कोविड-19 के पीछे भी यही रीजन नजर आता है, अनविलिंगनेस टू रेस्पेक्ट ऑल दीज 3 सेगमेंट्स। कोविड-19 डिजास्टर की बात करूं तो एक डिजास्टर के रेस्पेक्ट में एक जनरल बात है कि वी माइट बी हेल्पलेस इन प्रिवेंटिंग द अकरेंस ऑफ सच टाइप ऑफ डिजास्टर। इस तरह के डिजास्टर रोकने में चाहे हम असमर्थ हो, हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम अर्थक्वेक आने को रोक पाए, फ्लड आने को रोक पाए या तूफान आने को रोक पाए, लेकिन we can definitely reduce the extent of damages and loss of human life, which are the factors which convert a particular hazardous event into disaster. जब हम उनको रोक सकते हैं और रोक नहीं रहे हैं, तो आदमी रेस्पॉन्सिबल हुआ एक हजार्ड्स को डिजास्टर में कन्वर्ट करने के लिए, बिकॉज whatever may be the source of occurrence of the disaster, its severity is always underlined, it's always man-made. Hence, role of individual is very important in managing the disaster, particularly during such pandemic crisis. And as professional, our role is much more crucial or much more important. So we have to look in that area. और यही मेरा लेक्चर का एम है कि हम जहाँ भी हैं, जिस भी प्रोफेशन में हैं, यदि इन एरियाज पे नजर डालेंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा और हम डिजास्टर्स को कम करने में सफल हो पाएंगे। So this is the reason that severity of COVID-19, जैसा मैंने कहा कि severity is always man-made. अब man-made है तो तरह तरह के लोग, तरह तरह के एटीट्यूड के, तरह तरह के डिसिप्लिन के लोग पूरे ग्लोब में फैले हुए हैं। यही वजह है कि severity of COVID-19 pandemic is drastically varying from country to country, city to city and place to place. तो कहाँ के किस एरिया के लोग कितने अवेयर्ड हैं, शिक्षित हैं, कॉशियस हैं, एटीट्यूड अच्छा है, रिस्पॉन्सिबल हैं, वहां पर निश्चित रूप से इसकी जो त्रासदी है वो कम रही होगी। तभी अगर ये है और इंटेंसिटी सेम में तो सब देशों में समान रूप से लोग मरने चाहिए, लेकिन बिकॉज वी आर रेस्पॉन्सिबल, दैट्स व्हाई द सीवियरिटी ऑफ दिस पेंडेमिक इज वेरिंग फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, सिटी टू सिटी, प्लेस टू प्लेस। एंड एक चीज और देख लें कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक विषय नहीं है जिसको हम पढ़ा सकें, इट्स बेसिकली लाइफ स्किल। जैसे ह्यूमन वैल्यूज है ना, जरूर सिलेबस में डाल दिया इस बार, लेकिन दो चीजें होती हैं, दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज टू बी टॉट और दिस शुड टू बी कॉट। तो ये जो चीजें हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ, एथिकल वैल्यूज की बात हुई, ये सब्जेक्ट पढ़ने के कम समझने के ज्यादा है। इनको याद करना जरूरी नहीं है जितना उनको आत्मसात करना जरूरी है। तो ये वो एरिया है। इसी तरह डिजास्टर मैनेजमेंट भी है, तो मैं उसको उस कैटेगरी में रखूंगा कि इट्स नॉट ए सब्जेक्ट बट इट इज ए नेसेसरी लाइफ स्किल which comes from generation to generation, person to person, segment to segment, department to department. तो जैसा बिहेवियर अपने सीनियर का होगा वैसा हम करना चालू कर देंगे,
जो संस्कार हमें परिवार से मिले वही संस्कार रहेंगे, तो कहीं तो हमें उसमें चेंज लाना पड़ेगा। तो ये एक चीज है जो बहुत अधिक इस डिजास्टर मैनेजमेंट विषय से जुड़ी हुई है, द कंसेप्ट ऑफ एथिकल वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज, प्रोफेशनल वैल्यूज। और जब तक हम इसको नहीं समझेंगे, सारा विकास, सारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, सारी R&D वहीं बेकार हो जाएंगी जब तक हम इस ओर ध्यान नहीं देंगे। और थैंक्स टू द पॉलिसी मेकर्स कि उनका इस विषय की ओर भी ध्यान गया है और ड्रास्टिकली एजुकेशन पॉलिसी में ये चेंज लाया जा रहा है और इसकी आवश्यकता महसूस की गई है। क्योंकि ये चीज हम जब पढ़ते थे हमें पढ़ाई जाती थी, कैसे किस विषय के माध्यम से हमें नहीं मालूम, पर हम ये चीजें पढ़े हुए हैं। लेकिन ये चीजें कब धीरे धीरे उस कंटेंट्स में से गायब होगी, गॉड नोस। लेकिन अब उनको जब वापस हम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो ये कमेटी बनाओ, वो कमेटी बनाओ, ये डिस्कशन करो, ये रिकमेंडेशन लाओ, तब जाके इम्प्लीमेंट होंगे। सो दिस इज लाइक ए स्लो पॉइजन। तो हमें इस चीज की ओर भी ध्यान देना होगा। और हमें एहसास हो गया होगा इस लॉकडाउन पीरियड में कि अपने विकास की अहमियत क्या है। मेरी गाड़ी 3 महीने से अंदर खड़ी है ना? तो इस ओर जो चिंतन होता है वो अभी करने को इस तो ईश्वर की लीला है कि जब जब वो कहते हैं ना कि धरती पे पाप बढ़ते हैं तो वो हो जाता है। तो वही चीजें हैं कि हमारी गलतियां इतनी अधिक हो गई कि इस तरह के हमें डिजास्टर झेलने पड़ रहे और हमारे को रीथिंक करने पे मजबूर कर रहे हैं। अब मैं डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल की बात करूं तो एक बहुत बड़ा चेंज आया है इसकी। पहले जो डिजास्टर को फाइट करने की पॉलिसी हुआ करती थी वो रिलीफ सेंटर हुआ करती थी कि मतलब कहीं बाढ़ आ गई तो वहां सहायता कैसे पहुंचानी है। आपको यदि ध्यान हो तो पहले ये सहायता विभाग हुआ करता था, जो अभी अपना आपदा विभाग है ना, इसका नाम सहायता विभाग, रिलीफ डिपार्टमेंट हुआ करता था। क्योंकि हम इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया कि वो चीज आए नहीं उसको कैसे रोकें, आने के बाद हम सहायता कैसे पहुंचाएं, इस पे हमारा थ्रस्ट है। लेट द फ्लड कम, नाउ हाउ टू extend the relief from the government side or from the various department, that was the policy earlier to जब भुज का अर्थक्वेक आया उसके पहले। उस भुज के अर्थक्वेक ने भी वर्ल्ड वाइड टेक्नोक्रेट्स के बीच में, पॉलिसी मेकर के बीच में एक बहुत बड़ा चेंज लाया। तो ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट की रिलीफ सेंटर अप्रोच थी उसकी जगह उन्होंने कहा दिस शुड बी प्रोएक्टिव अप्रोच। भाई मकान, अर्थक्वेक में मकान गिर गया, अब उसमें लोगों को कैसे बचाना है, ये तो एक चीज हुई, पर मकान गिरे नहीं, ये हमारी प्रोएक्टिव अप्रोच हुई। तो और ये ऑब्जर्व किया गया कि प्रोएक्टिव अप्रोच में यदि हम जितना पैसा लगाएंगे वो रिलीफ अप्रोच में जितना पैसा लगा रहे हैं उससे काफी कम होगा। हो सकता है वो रिलीफ सेंटर अप्रोच में 4 गुना 5 गुना हो, लेकिन उसका 1/4 अमाउंट लगा के भी हम प्रोएक्टिव अप्रोच को लगा सकते हैं। तो ये जो 3 इवेंट है, प्रिवेंशन, मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस, दीज आर द कंपोनेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। अब ये जो 3 है, प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, ये आते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच में। हम उसको प्रिवेंट कैसे करें, हम उसको मिटिगेट कैसे करें, हम प्रिपेयर्ड कैसे रहें। अगर इनकी पालना पहले कर लें तो इनका अर्थ कम हो जाता है। लेकिन यदि आपने इनकी पालना नहीं की तो आपको इन पे थ्रस्ट देना पड़ेगा कि आपका रेस्पॉन्स क्या है, रिकवरी कैसे कर रहे हैं, फिर रिहेबिलिटेट कैसे कर रहे हैं। सो ये जो 3 एक्टिविटीज हैं डिजास्टर कंपोनेंट की, दैट कम्स अंडर द रिलीफ सेंटर अप्रोच, जो पहले हुआ करती थी अब काफी चेंज हो गई है, हर डिजास्टर पे लागू होती है, वेदर इट्स बायोलॉजिकल, एपिडेमिक, पैंडेमिक, कोई सा भी डिजास्टर हो, सब पे। तो कहते हैं ना कि सावधानी से सुरक्षा भली, सावधानी से, जो भी वो कहावत है मैं भूल रहा हूँ। तो सावधानी एक बहुत जरूरी है और अभी भी यही मैसेज जा रहा है कि अपने आप को सावधान करें, अपने आप को सुरक्षित रखें, वही बचाव है, सावधानी बचाव है। तो वो वाली चीज है। And learning from the past lesson, a paradigm shift has been observed in the national policy on disaster management. Now relief center से proactive approach में convert हो गई। Now it's 11. COVID-19 disaster के respect में the as civil engineering professional, we must give a serious thought to sustainable development. चाहे इसका कोविड से रिलेशन है या नहीं है,
but it's not a, again, it's not a subject, it is the approach. यदि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझ जाएंगे तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट केवल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है. इट इज रिलेटेड विद एजुकेशन, it is related with human behavior, it is related with medical science, everywhere. But you have to understand what is sustainable development, क्योंकि हमने, हमारी मानव सभ्यता ने मात ही इससे कही है कि हम डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाए. तो हमें समझना जरूरी है कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो इसी पे मैंने 2 स्लाइड रखी हैं. जब मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि द अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट, हम जो कहते हैं ना हमेशा विकास विकास, दुनिया में विकास हो रहा है, हिंदुस्तान भी विकास करेगा, है ना. जहां विकास की बात आती है टेक्नोलॉजी साथ में आती है, जहां टेक्नोलॉजी आती है वहां हम साथ में आते हैं. तो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग बेटर एंड कंफर्टेबल वर्ल्ड, कंफर्टेबल लिविंग कंडीशन, ये एक प्रक्रिया थी जिसमें हम अपने जीवन को सुविधाजनक कैसे बनाएं. Man has put himself into the race of adopting the emerging technology in the unplanned manner. This is the key point where the solution of these disasters exist. कि इस विकास की अंधी दौड़ में हमने क्या किया, हमारे आपको सुविधाजनक, हमारी लाइफ को सुविधाजनक बनाने के लिए जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी थी उनको हमने आंख बंद करके अडॉप्ट करना प्रारंभ कर दिया, बिना इस पर ध्यान दिए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. विदाउट नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट. साइकिल से मोटरसाइकिल अच्छी है, खरीद लाए, मोटरसाइकिल से कार अच्छी है, खरीद लाए. इस प्रोसेस में क्या हुआ, हमने हमारी फिजिकल एक्सरसाइज छोड़ दी, एंड वी आर गेटिंग सफर्ड बाय वेरियस डिसीज ड्यू टू दैट ओनली. तो ये है क्या, ये एक ही चीज हुई ना. नाउ दिस हैज इंक्रीज द वल्नरेबिलिटी ऑफ द लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन द इवेंट ऑफ सच हजार्डस इवेंट. जब इस तरह के हजार्डस इवेंट होती है ना, वहां ये चीज पिक्चर में आती है कि आपने जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को कितने प्लांट वे में लगाया है या कितने अनप्लांट वे में लगाया है. इसलिए जो कंट्रीज लीस्ट डेवलप्ड है, डेवलप नहीं है, उनमें जो टेक्नोलॉजी लगी है, आज आप एग्जांपल देख लो, ईरान में एक भूकंप आता है, वहां पे जो कैजुअलिटीज होती हैं 6 मैग्नीट्यूड के, उससे वो लाखों में पहुंच जाती है, हजारों में पहुंच जाती है. उस मैग्नीट्यूड का या उससे अधिक मैग्नीट्यूड का भूकंप अगर जापान में आएगा तो आप देखोगे कि वहां कैजुअलिटीज है ही नहीं, 1-2 इंजरीज हुई है मुश्किल से. सो व्हाट इज दैट डिफरेंस, बिकॉज दैट कंट्री इज यूजिंग द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन प्लान्ड मैनर, नॉट इन अनप्लान्ड मैनर. सो it is very necessary, and that's why इस स्टेज पे with this background we can define the sustainable development. Should I go ahead? मजा आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ तुम. तो इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैं इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा क्लास में, तो फिर भी रेस्पॉन्स चेहरे देख के पता चल जाता है कि आपको कितना इंटरेस्ट आ रहा है. लेकिन दिस इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ द ऑनलाइन सिस्टम कि सामने वाले की प्रतिक्रिया नहीं जान पा रहे. एनीवे, I know sustainable development was defined by the UN World Commission on Environment and Development in 1987 report. 87 कब से सभ्यता चल रही है, 87 में जाके हमें एहसास हुआ कि यार सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी डिफाइन करना चाहिए, और उसको डिफाइन किया डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंस. और ध्यान से पढ़िए, इसका एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है. वो आपके जो एक्शन है, आपके जो एप्लीकेशन है आपकी नॉलेज की, उसमें अगर ये बैक ऑफ द माइंड ये डेफिनेशन बैठी हुई है तो आप उसको उसी हिसाब से इंप्लीमेंट करोगे कि डेवलपमेंट दैट मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स. विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए. हमने हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति किस कॉस्ट पे करी, फ्यूचर जनरेशन पे, फ्यूचर जनरेशन की कॉस्ट पे. तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस चीज में आपको रेस्ट्रिक्ट करता है, बाध्य करता है कि आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो विकास करो, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशन, जो हमारी जनरेशन हमारे पूर्वजों की सोच की वजह से भुगत रही है. तो हमें इस और ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारा रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जेंटलमैन.
और ये स्टूडेंट जो अभी इसमें बैठे हैं 100-125 जितने भी स्टूडेंट हैं, यही कल के निर्माता हैं। इन्हीं को डिफरेंट अपनी नॉलेज को डिफरेंट डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है, पॉलिसीज में जाना है, ठीक है, पॉलिसी मेकर बनना है। तो उनको ये सोचना पड़ेगा कि हमें जो विकास करना है वो फ्यूचर जनरेशन की कॉस्ट पर ना हो। अब जहां तक अपनी आवश्यकताओं की बात आती है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि हाउ वी डिफाइन आवर नीड्स। आवश्यकता तो कैसे डिफाइन करूं? मैं तो अपनी स्कूटर से सेटिस्फाई नहीं था, फिर कार से सेटिस्फाई नहीं, फिर छोटी कार से सेटिस्फाइड नहीं, तो बड़ी कार से भी सेटिस्फाइड। तो आवश्यकताएं कहाँ खत्म होंगी? तो ये एक फिलोसफिकल विषय हो गया। लेकिन महात्मा गांधी जी जो हमारे थे, उन्होंने नीड्स की जहां तक बात है, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको अच्छे शब्दों में डिफाइन किया था कि देयर इज एनफ इन द वर्ल्ड टू मीट द नीड्स ऑफ एवरीवन। ईश्वर ने इस प्रकृति में इतना कुछ दिया है कि वो हर आदमी की आवश्यकता पूरी कर सकता है, आप कितनी पॉपुलेशन बढ़ा लो। बट देयर इज नॉट एनफ टू मीट द ग्रीड ऑफ एवरीवन। तो हमें इसमें अंतर स्थापित करना होगा कि आवश्यकता और ग्रीड, नीड और ग्रीड में क्या फर्क है। एंड because we have converted our needs into the greed, that's why this situation has occurred, that we ran in adopting the technology in unplanned manner, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी उसके रिजल्ट चाहिए, because we have converted our need into the greed. Sustainable development, sustained development is about the future, and we can only think of the future when present is not in crisis. अब इसका दूसरा पहलू देखें आप, कि हम यदि विकास की बात करें तो उस विकास का औचित्य, उस विकास की सेंटिटी तभी है जब हमारा फ्यूचर क्राइसिस में नहीं हो, प्रेजेंट इज नॉट इन क्राइसिस। हमारे भविष्य को सुखद बनाने के लिए हमारे प्रेजेंट को तो रिस्क में नहीं डाल सकते। तो ये विचार भी हमें हमारे दिमाग में रखना पड़ेगा एज प्रोफेशनल, पर्टिकुलरली एज सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल। व्हाट इज रिक्वायर्ड? अब हमें रिक्वायर क्या है इसके लिए, कि हाउ वी कैन चेंज आवर अप्रोच। प्रॉपर लिंकेज बिटवीन एनवायरमेंटल, नेचुरल डिजास्टर एंड डेवलपमेंट। जहां हम विकास की बात करें वहां एनवायरमेंट का भी ध्यान रखें और डिजास्टर का भी ध्यान रखें। पॉलिसी को केवल विकास के नाम पे ना बनाए। यदि किसी इंडस्ट्री के डालने से एनवायरमेंट का सत्यानाश हो रहा है, तो वी शुड नॉट परमिट दैट, वॉट एवर मे बी द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो जब तक हम इन तीनों चीजों को किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में समाहित नहीं करेंगे, पर्यावरण, आपदाएं और विकास, ये तीन फैक्टर ऐसे हैं, यदि कोई भी पॉलिसी, रोड भी बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, जो भी आपके प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उनमें इन दो विषयों को और समाहित करें कि हमारे इस विकास के प्रोजेक्ट में हम कहीं हमारे एनवायरनमेंट को या तो डिस्टर्ब नहीं कर रहे, या हम नई आपदाओं को तो आमंत्रित नहीं कर रहे। तो ये चीज अगर आपके बैक ऑफ द माइंड है तो पॉलिसी उस हिसाब से सही बनेगी। अवॉइड कैजुअल एटीट्यूड, ये तो अपनी नेचर की बात है, जो मैंने बताया था, चलता है एटीट्यूड वाली बात। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट इन प्लानिंग, डिफरेंट डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन का अभाव हमेशा रहता है और वो प्रोजेक्ट डिजास्टर्स प्रूव होता है। हमें एक बार, हमें जब सर्वे पढ़ाते थे, हमारे टीचर थे 4 ही साउथ इंडियन थे, बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते थे। सौभाग्य हमारा अच्छे अच्छे टीचर मिले हमें जीवन में, और उनसे ही हमें टीचर बनने की प्रेरणा मिली। तो वो बताते थे कि एक रोड का प्रोजेक्ट था नेशनल हाईवे का, तो जैसे एक स्टेट से पास होना था और दूसरी स्टेट से, तो दोनों को ड्राइंग उपलब्ध करा दी गई कि ये आपकी स्टेट का पोर्शन आप बना लो और आपकी स्टेट का आप बना लो, क्योंकि वर्किंग एजेंसी तो यही है। तो एक स्टेट ने, वो था तो उनके पास नक्शा ही केवल, अब उसके कोऑर्डिनेट को ग्राउंड में ट्रांसफर करना था। उस बी स्टेट ने अपनी रोड बनाई, ए ने अपनी रोड बनाई, और जो दोनों के मीटिंग पॉइंट पे डिफरेंस है वो कितने किलोमीटर का था। तो वो कह रहा मैं सही हूँ, वो कह रहा मैं सही हूँ। तो मैं बात कर रहा था कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चाहिए किसी प्लानिंग में। तो विभिन्न विभागों का सामंजस्य बहुत जरूरी है। यदि आप कोई इंडस्ट्री डाल रहे हैं तो एनवायरमेंट पीपल से बात करें, डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोफेशनल से बात करें। ये सब चीजों को जब तक आप साथ कोऑर्डिनेट करके नहीं चलेंगे तो यू कैन नॉट लीड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और एथिकल एस्पेक्ट तो एक विषय है जो अपने आप में अलग है,
मैं तो आप सबसे कामना करूंगा कि इस ओर अपना लगाएं, क्योंकि इसमें AICTE ने बहुत बड़ा एफर्ट किया है। ह्यूमन वैल्यूज पे बहुत अच्छे कोर्सेज डेवलप हो गए। मैं तो खुद 3-4 वर्कशॉप अटेंड कर चुका हूँ इसकी, और ये बहुत आवश्यकता है। अपन नहीं कर पाए इसको आत्मसात, अपनी आने वाली जनरेशन को, अपने बच्चों को यदि इस विषय की ओर थोड़ा मोड़ेंगे तो शायद जिंदगी काफी कंफर्टेबल होगी। तो इस ओर जिनका इंटरेस्ट है वो एथिकल वैल्यूज को, ही कैन कॉन्टेक्ट मी। आई एम द यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर फॉर द ह्यूमन वैल्यूज प्रोग्राम। यदि कोई इसमें रुचि रखता है, अपने कॉलेज को नोडल सेंटर बनाना चाहता है, इसमें और आगे बढ़ना चाहता है, कुछ इंटरेस्टेड फैकल्टी हैं जो वॉलंटरली लीड करना चाहती हैं, सो दे कैन एनी टाइम कॉन्टेक्ट मी। मेरा मेल एड्रेस भी इसमें मैं दूंगा आपको, फोन नंबर तो है ही आप लोगों के पास। यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम, और आप अपना इंटरेस्ट बता सकते हैं। आई विल गिव द रेस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी की बात करें, क्योंकि अब सस्टेनेबिलिटी जुड़ा हुआ वर्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। तो हमारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी तो की ऊंचाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। आप यदि ये देखें राइट साइड में, तो दिस इज राइजिंग डे बाय डे, और सस्टेनेबिलिटी जो है वो डे बाय डे डाउन होती जा रही है। बिकॉज व्हाट इज द रीजन? बिकॉज आवर डेवलपमेंट इज नॉट सस्टेनेबल. So it is unfortunate part that the wonderful creation created by using the emerging technology, we are not even able to sustain them. जो बहुमूल्य हमारी धरोहर है, हमारे इतिहास की, हमारे पूर्वजों की, हम उनको सुरक्षित रखने में भी अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। वो डेवलप कैसे हुई होंगी ये तो हम नहीं सोच सकते। तो टेक्नोलॉजी हमेशा से विकसित रही है, लेकिन हम उनको सुरक्षित भी नहीं रख पा रहे। द ब्यूटीफुल गिफ्ट्स अवॉर्डेड बाय नेचर इन द फॉर्म ऑफ क्लीन एयर, वाटर, फॉरेस्ट, वी आर नॉट पोजीशन टू मेंटेन देम। प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया था, लेकिन हम उसको उस रूप में रख ही नहीं पा रहे। मैं तो अब देखता हूँ कि बेटा बेंगलोर में है, दिल्ली में भी कई फ्रेंड्स हैं, वो बताते हैं कि ऐसा स्काई तो हमने आज तक देखा नहीं जन्म से, जो लॉकडाउन पीरियड में हमें देखने को मिला। तो इसमें प्रकृति ने तो कुछ नहीं किया, हमने ही हमारी एक्टिविटीज को बंद किया जो अनडिजायरेबल थी। कि हमने इतने तारे तो रात में आज तक नहीं देखे, इतना चांद तो हमने खूबसूरत कभी नहीं दिखा। तो ये कारण है कि द ब्यूटीफुल गिफ्ट्स अवॉर्डेड बाय द नेचर इन द फॉर्म ऑफ क्लीन एयर, वाटर, फॉरेस्ट, वी आर नॉट इन पोजीशन टू मेंटेन देम। तो इस ओर हमें सोचना होगा, तब हम विकास को सही रूप से परिभाषित कर पाएंगे, और उसी को हम विकास कहेंगे। अब एज साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स have a responsibility of communicating the risk and rewards of new technology to society at large, otherwise it will lead to disaster. तो एक प्रोफेशनल, एज सिविल इंजीनियर, एज टेक्नोक्रेट, एज एकेडमिशियन, हमारा फर्ज बनता है कि जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं उनको आप लगाएं, प्रचारित करें, लोगों को प्रेरित भी करें यूज में लेने के लिए, पर साथ में उसके कॉन्सिक्वेंसेस से भी उनको अवगत अवश्य कराएं, ताकि अकॉर्डिंगली दे कैन यूज द। क्योंकि देखो अपने मेडिसिन आती हैं, हर दवाई पे उसके साइड इफेक्ट भी लिखे हुए रहते हैं, है ना। तो आदमी सोचता है कि अब मेरे लिए मेरी प्रॉब्लम जो हेल्थ की चल रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या साइड इफेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड, बट it's your responsibility to make them aware with regard to the consequences of that particular new technology. क्योंकि आम आदमी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखता है। आपने कह दिया कि नहीं नींव ऐसी डालनी चाहिए तो ऐसी, वो तो डालने चला जाएगा, लेकिन कहाँ डालनी चाहिए, ऐसी डालने पे नुकसान क्या हो सकता है, क्या सावधानी रखनी है, जब तक ये इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे तो वो उस न्यू टेक्नोलॉजी कोई सार्थक नहीं होगी। उसको हमें उस रूप में हम उसको अडॉप्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसमें रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर अडॉप्ट करें। और यदि कोई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर भी रहे हैं, आपको नहीं भी बताया गया, तो यू ट्राई टू फाइंड आउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी। अब जैसे एआई का चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत हवा चल रही है। हमने तो सुना है कि आने वाले समय में आदमी का ऑपरेशन भी रोबोटिक कर देगा, डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है ना। इस हद तक की, मतलब एक क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल मानव, आर्टिफिशियल दिमाग, उसका इजाद किया जा रहा, नाम ही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। लेकिन अब वही वाली बात है कि वो जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया पर उसको वापस नहीं बुला सकते, है ना।
अगर रोबोट में कोई मिस कम्युनिकेशन हो गया, क्योंकि उसके पास जो चीज एक मानव में है, सेंस, मानवता, वो चीज आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में नहीं डाल सकते। तो कुछ डिसीजन उसको देख के भी लेने होते हैं। ही इज फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन विच यू आर गिविंग, तो वो कॉन्सिक्वेंसेज भी हमें देखने होंगे। एनीवे काफी डाइवर्ट कर दी मैंने बात। सो डिजास्टर चैलेंजेस टू सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल। अब हम विषय पे आते हैं इस भूमिका के साथ। अब हमें पता चल गया कि वी हैव स्टार्टेड द टॉक विद रिस्पेक्ट टू द कोविड-19। मुझे लगा उचित कि कोविड-19 को एक डिजास्टर के रूप में देखें हम। तो डिजास्टर की पूरी फैमिली में ये कहाँ एग्जिस्ट करता है, बाकी डिजास्टर्स को मैनेज कैसे किया जाता है, उनकी अप्रोच क्या रहती है, उनका एक्सटेंड क्या है, वल्नरेबिलिटी क्या होती है, डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स, हजार्ड और डिजास्टर में क्या डिफरेंस है, एपिडेमिक पैंडेमिक में क्या डिफरेंस है। तो पहले हमने उसको जानने की चेष्टा की और हम इससे एक्वेंट हो गए कि हम अब बात कर सकते हैं कि हमारे अब इस कोविड-19 के रेस्पेक्ट में हमारे चैलेंजेस क्या हैं एज सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल। तो उसकी ओर थोड़ा ध्यान दिलाएंगे मंथन, क्योंकि इसके सॉल्यूशन तो आप ही लोगों को ढूंढने। मैं आपको प्रॉब्लम रेज करूंगा, जब आपके दिमाग में एक ट्रिगरिंग हो जाएगी इस तरह की एरिया की, तो यू विल वर्क ऑन दैट। रिमेंबर, वेयर विलिंगनेस इज ग्रेट, द डिफिकल्टीज कांट बी ग्रेट। ये हमेशा अपने मन में रखें। यदि आपकी इच्छा शक्ति बहुत अधिक है तो कोई भी कठिनाई, कोई भी दुविधा आपके लिए बड़ी नहीं हो सकती। सो फर्स्ट यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। चैलेंजेस टू सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल। सो इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। तो इसके पहले कि हम चैलेंजेस देखें तो पहले तो ये देखें कि इसका इम्पैक्ट हमारी सिविल का मतलब हुआ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, है ना, जो हमारी जो फ्लैट्स बनते हैं और इसमें जो डेवलपर्स इन्वॉल्व हैं वो हुए, है ना, एक उसके यूजर हुए, एक हम एकेडमिशियन हुए एज सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेशन। तो इन सब पे पहले तो हम वो देखें कि इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है कोविड-19 का। उसके बाद हम उनको चैलेंजेस के रूप में लें और उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें, यही अप्रोच रखेंगे। सॉल्यूशन की जहां तक बात है वो दिस इज ओपन फॉर ऑल, राइट। कुछ एरियाज में सजेस्ट करूंगा और इसका कोई एंड नहीं है। नाउ आई विल सजेस्ट यू कैन गो फॉर अनदर वेबिनार इन विच दीज प्रोफेशनल्स जो डेवलपर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, इनको बिठा के करेंगे तो उनकी प्रॉब्लम से वो हमको वाकिफ कर सकते हैं, है ना। एज एकेडमिशियन it's our responsibility to suggest them the solution in the right perspective. So COVID-19 impact in general हम बात करें, not from civil engineering point of view, and the global response to its serious threat to global health. एक तो इसने ग्लोबल हेल्थ को चैलेंज किया, हमारी सब कम्युनिटीज को चैलेंज किया, उनके एग्जिस्टेंस को चैलेंज किया इसने, हमारी डे टू डे एक्टिविटीज को चैलेंज किया, आवर इकोनॉमिक, हर कंट्री की इकोनॉमी को ड्रास्टिकली प्रभावित किया, एंड आवर इन्वेस्टमेंट्स, हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो हमने अच्छे काम के लिए लगा रखे थे उन पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। द रिजल्टिंग इम्पैक्ट ऑफ ऑल ऑफ द अबव ऑन आवर मेंटल हेल्थ, क्योंकि डिजास्टर की सबसे बड़ी जो एक इंड्यूस्ड हजार्ड होता है वो होता है मेंटल हेल्थ। कोई सा भी डिजास्टर आप सोच नहीं सकते, आपने आपकी पीढ़ियों ने जो बरसों से मतलब अपनी परिवार का विकास किया वो एक मिनट में धराशायी हो जाए, तो आपकी मेंटल स्थिति वही समझ सकता है जो सर्वाइवर है। इज द बेसिकली इस तरह के डिजास्टर में सर्वाइवर इज द मोस्ट सफरर। तो बहुत तरीके के इस तरह की प्रॉब्लम आती है डिजास्टर के बाद। तो ये इश्यूज हैं जिसको कोविड-19 ने, ये जनरल इश्यूज हैं। Now we will try to find out the areas which are related as civil engineering professional. So now is the time for decisive and collective action. Not only decisive, but it should be collective action regarding the opinion of each and every segment. जहां तक चैलेंजेस टू सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल की बात है, कोई सा भी डिजास्टर लें, मैं कोविड की बात नहीं कर रहा, इन जनरल यदि आप उसके इम्पैक्ट देखेंगे तो उस डिजास्टर में क्या होता है, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सप्लाई चेन। इनका भी किसी भी, अब आप एक एक डिजास्टर की कल्पना करते जाएं, इसमें से बहुत सारे पॉइंट उसमें कवर हो जाते हैं।
lost wages, people displaced, damage to the environment, economic impact on businesses. तो ये कोविड-19 की बात नहीं है, ये कोई सा भी डिजास्टर हो, इन जनरल उसके कॉन्सिक्वेंसेज इन एरियाज में देखने को मिलते हैं। अब मैं इसको रिलेट करूं अपने कोविड-19 चैलेंज टू सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल, तो आप देखेंगे लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सप्लाई चेन से क्या हो रहा है, अब हमें आवश्यकता हो गई री इंस्टॉलेशन ऑफ सप्लाई चेन। सप्लाई चेन एक बैकबोन है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, किसी भी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की सप्लाई चेन, वही हमारी ब्रेक हो गई है ना। सप्लाई चेन का मतलब समझते हैं ना, कि जो आवश्यक रॉ मटेरियल है उसको कहीं से लेके और अपनी साइट तक लाना, दैट इज द सप्लाई चेन। अब उसमें डिस्ट्रक्शन आ गया, ट्रैफिक पे कंट्रोल हो गया, ट्रकों पे कंट्रोल हो गया, तो अब हमें इसको नए सिरे से सोचना पड़ेगा। हो सकता है रेस्ट्रिक्शन कितना टाइम तक चले, ठीक है, और कितनी बार रिपीट हो, डोंट नो। इसी तरह जो पीपल डिस्प्लेस हुए उससे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को फेस करनी पड़ी है वो है रिवर्स माइग्रेशन, क्योंकि हमारा जो है लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है तो इसके लेबर के बिना काम नहीं चल सकता। आप चाहे प्री मिक्स कंक्रीट बना लें, सब कुछ कर लें, बिना लेबर के ले करना मुश्किल है। कहीं ना कहीं तो मैनुअल हैंड चाहिए ही चाहिए। अब वो जितना आप ऑटोमाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे, ऑटोमेशन की तरफ बढ़ेंगे, जितना डिजिटाइजेशन करेंगे, हो सकता है कि आप लेबर का क्वांटम कम कर दें। तो ये हमें एड्रेस करेगा कि हमें इन अपॉर्चुनिटी, हम इन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी कहाँ ढूंढनी है ना। और तीसरा पार्ट है इम्पैक्ट ऑफ ऑन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एज ए होल। जो हमसे रिलेटेड जो सबसे बड़ा इंडस्ट्री है वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जिसके लिए हम भी काम करते हैं, बच्चों को ज्ञान देते हैं, अपना ज्ञान बढ़ाते हैं और इस तरह के प्रोफेशनल तैयार करते हैं कि वो इस इंडस्ट्री को और ऊंचाई पर ले जाए, ताकि वो देश के विकास में आवश्यक सहयोग कर सके, उसकी इकोनॉमी में, उसकी रेवेन्यू में बराबर इनपुट दे सके। Also the COVID-19 has posed a big challenge to education imparting institution, जो आप भी फील कर रहे होंगे, आप और हम इससे जुड़े हुए हैं मैक्सिमम लोग। तो जो एक नई जो ये परिस्थिति क्रिएट हुई है उसमें किस तरह बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि हम बहुत समय तक हमने 30 साल 35 साल निकाल दिए शिक्षा में, और एक कोटेशन बोलता है देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ ब्लैक बोर्ड टीचिंग, है ना। जब भी कोई ऑनलाइन टीचिंग की बात करता था हमारे मुंह से यही निकलता था देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ ब्लैक बोर्ड टीचिंग। लेकिन अब उससे हमें बाहर आना होगा। ये हमारा एक जो होता है ना, जिसको कि मेरे दिमाग में मैंने बिठा रखा था, लेकिन क्या परिस्थिति हो जाए उस टाइम, चूंकि ब्लैक बोर्ड टीचिंग का ऑप्शन था तो मैं कंपेयर कर पाता था। लेकिन अब हमें इस विषय पे भी ध्यान देना होगा, इसलिए एजुकेशनल इम्पार्टिंग इंस्टीट्यूट के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कोविड-19 अपार्ट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। ठीक है, आगे बढ़े। तो इम्पैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को अपन पहले डिस्कस करें। Impact on construction industries, real estate is the labor intensive sector and disruption in construction will have a direct impact on the market, on the economy of a country. सब तरह का impact होगा यदि इस पे कोई डेंट लगता है तो। रीजन्स, जो मेजर रीजन जो हैं जिनको मैं ब्रॉड एरिया में बांट सकता हूँ, वो है रिवर्स माइग्रेशन, ठीक है, सॉरी, ब्रोकन सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक, जिसकी अभी मैंने बात करी आपसे, फाइनेंशियल क्राइसिस, ऑल द डेवलपर्स, जो बड़े बड़े डेवलपर हैं वो फाइनेंशियल क्राइसिस में भी हैं, उनने लोन ले रखा होगा, उनकी कुछ बाइंडिंग होगी, कौन सा फ्लैट कब तक तैयार करके देना है, अब क्या होगा आगे, यदि 1 साल डिले हो गया तो क्या होगा। सो देयर आर सो मेनी लीगल इश्यूज विल आल्सो कम, तो फाइनेंशियल क्राइसिस भी है। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, वो भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, वो भी एक क्लास में, है ना। क्लास में अभी क्या होता था, अरे भाई थोड़ा पास पास बैठो और बच्चे भी बैठ जाएंगे, है ना। अब हमारा इंस्ट्रक्शन चेंज हो गई, भाई दूर दूर बैठो, है ना। तो ये चेंजेस आ रहे हैं हमारी डे टू डे एक्टिविटी में ड्यू टू दिस डिजास्टर। अब इन सब की पालना करते हुए रिवर्स माइग्रेशन को भी फेस कर रहे हैं, सप्लाई चेन भी टूट चुकी है, फाइनेंशियल क्राइसिस भी है, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना है, और लोगों की अब डिमांड भी चेंज हो गई। डिमांड चेंज कैसे हो गई,
डिमांड ये चेंज हो गई कि मुझे वो क्लासरूम नहीं चाहिए कि एक छोटे से कमरे में ज्यादा से ज्यादा बच्चे कैसे आ सकते हैं। अब मुझे वो क्लासरूम चाहिए जिसमें बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए कैसे बिठा सकता हूँ, कैसे उनको बाहर निकाल सकता हूँ, ये चीजें आ गई। सो अब यहाँ रोल किसका बना? आर्किटेक्ट का, ठीक है, इंटीरियर डिजाइनर का। काफी चेंजेस आएंगे अब इसमें, है ना, ऑफिस सेटअप में भी चेंजेस आएंगे, क्योंकि अब ये मालूम नहीं ना कि ये स्थिति कब तक रहनी है, दैट इज द अनसर्टेनिटी। तो हमें प्रिपेयर तो होना ही पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि अभी तो कोई भविष्यवाणी कर नहीं सकता कि 6 महीने बाद बिल्कुल खत्म। तो कब तक चलेगा, उस हिसाब से चीजें रुकेंगी नहीं, हमें परिवर्तन लाने ही होंगे। और यही हमारे को प्रेरित करेंगे कि हम चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमें चैलेंजेस का ज्ञान नहीं होगा, उसमें से अपॉर्चुनिटीज कैसे ढूंढेंगे? व्हाट आर अपॉर्चुनिटीज? बेसिकली द सॉल्यूशन ऑफ दोज चैलेंजेस इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम इज उसको हम ले सकते हैं। So it's a big challenge to construction industries to turn the tide and restore normalcy at the earliest. नॉर्मलिसी होगी, सामान्य परिस्थितियां बनेंगी, लेकिन इस इंडस्ट्री के साथ क्या है कि यदि देर से बनी तो वो भी कुछ काम की नहीं है। तो असामान्य परिस्थितियों में भी हमें हमारे टारगेट पूरे कैसे करने हैं, उसके लिए हमें मंथन करना होगा। और इसमें एज एकेडमिशियन और एज प्रोफेशनल हमारा भी योगदान काफी अपेक्षित है। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम बात करें, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को लेके चले थे, तो इसकी प्रॉब्लम क्या है? एक तो द इंडियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एम्प्लॉयज ओवर कितने करोड़ पीपल लिखा हुआ है ये? एनीवे, कितना पूजा? 4.9। हाँ, इतने करोड़ पीपल, क्लोज टू 12% ऑफ द नेशनल वर्किंग पॉपुलेशन आर एंगेज विद द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। A significant number of daily laborers, both skilled and unskilled, belong to rural areas across the country. अब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कहाँ चलती हैं? अर्बन एरियाज मोस्टली, है ना, और लेबरर कहाँ की है? रूरल एरिया, तो वहां से यहाँ आना ही चाहिए उनको। और नाउ द वैल्यू ऑफ ग्लोबल रियल एस्टेट इज मोर देन वैल्यू ऑफ ऑल द स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स कंबाइंड। यदि हम वर्ल्ड वाइड ग्लोबली देखें तो जो रियल एस्टेट की जो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स की बात है कि जो वैल्यू है ऑल द स्टॉक्स, बाकी सब जो मेजर फंड्स है, उनको मिला के भी रियल एस्टेट काफी रहता है। तो इसका कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड इकोनॉमी में भी काफी है। तो ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। हम इससे सीवियरिटी समझ सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे किसी भी तरह का डेंट, किसी भी तरह की कोताही कितनी बड़ी हानि पहुंचा सकती है ऑन ऑल द फ्रंट्स। सो इम्पैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, पहली प्रॉब्लम है रिवर्स माइग्रेशन की। यदि इनको मैं शब्दों में डिफाइन करूं तो एक KPMG कंपनी है, बहुत लार्ज कंस्ट्रक्शन कंपनी है दिल्ली में, उसने एक एस्टिमेट लगाया कि अराउंड 60 to 65% आर इन रिवर्स माइग्रेशन मोड विद अराउंड 30 to 35% अंडर लॉकडाउन एट साइट। साइट पर भी यदि बच गए तो लॉकडाउन कंडीशन है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है, तो उसके लिए वो दोनों लेबर काम की नहीं है जो लौट चुके हैं। एंड मोर ओवर द क्राइसिस बीइंग इन द बेस्ट ऑफ द टाइम्स हायरिंग लेबर फॉर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। और ये एक समय ऐसा है जिसमें मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चलती थी फाइनेंशियल ईयर में, है ना। मैक्सिमम यही टाइम होता है जनवरी से लेकर मई जून तक का, और उसमें क्राइसिस झेलना पड़ रहा है। तो ये एक उसका टाइमिंग भी बहुत इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद फिर आप देखें तो मानसून पीरियड आ जाता है, उसमें वैसे ही कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज नहीं चल पाती हैं उस गति से। तो ये एक डबल ब्लो हो गया एक तरह से इस पर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे, इसके टाइमिंग को देख के। नाउ रिवर्स माइग्रेशन द फ्यूचर फियर। अब हमें एक भविष्य का अंदेशा क्या है, हमारा डर क्या है इसको, ब्रिंगिंग बैक द वर्कफोर्स इन साइट विल बिकम ग्रेट चैलेंज। अब उन लोगों को जो घर पहुंच गए एक बार, उनको वापस लाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। The ability and willingness of the migrant labor to return to work depend upon extent of pandemic related fear। भाई जान सबको प्यारी है ना, तो अब वो इसका डर कब खत्म होगा, तभी वो लौटेंगे। जब उन्हें लौटने में ही अपनी जान की परवाह नहीं करी, तो वापस आने पे क्यों अपनी जान को रिस्क में डालेंगे, ठीक है ना। तो ईज ऑफ मोबिलिटी आफ्टर द लॉकडाउन इज लिफ्टेड। ऐसा भी नहीं कि लॉकडाउन खत्म हो गया तो लौट आएंगे। सुविधा कितनी है, ट्रांसपोर्ट कितने अवेलेबल है, कितना रेस्ट्रिक्शन से उसको लौटना है,
ये सारे फैक्टर हैं जो हमारे दिमाग में एक भय है कि वो वापस कैसे आएंगे। तो ये दिस इज रिलेटेड विद द रिवर्स माइग्रेशन। Now different states are likely to have their own approaches returning to normalcy. अब हर एक स्टेट की अपनी अप्रोच है कि इस स्टेट वाले को अलाउ करूंगा, इसको नहीं करूंगा, मेरे यहाँ इतने लोग आएंगे। वाजिब भी है ना, क्योंकि सीवियरिटी हर जगह की अलग अलग है। तो बॉर्डर पे क्या सिचुएशन होगी, वो जाना चाहता है लेकिन वो स्टेट आने नहीं दे रहा। तो इस तरह की कई प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ेंगी रिवर्स माइग्रेशन को लेकर। इसी तरह आल्सो विद द बेसिक सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर 3 months। अब जैसे गवर्नमेंट ने सहायता दे दी, अच्छी चीज है ना, लेकिन यदि उसको गांव में बैठे 3 महीने तक राशन पानी सहायता मिल रही है तो वो क्यों लौटना चाहेगा, है ना। तो हमने तो एक अच्छे काम के लिए उसको दी, लेकिन हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हिसाब से उसके लौटने में वो एक बाधक बन गया, ठीक है ना। तो मानवता और प्रैक्टिकलिटी दोनों चीजों में कंप्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। Now, in case the dearth of labor is prolonged, the impact on project timeline, cost and profitability. ये तीनों चीजें जो बहुत एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के। व्हाट इज द टाइमलाइन, व्हाट सीपीएम आपने पढ़ा होगा, है ना, कि ये एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, ये एक्टिविटी यहाँ से शुरू होगी, उसमें अपन चेंजेस भी करते रहते हैं, क्रिटिकल एक्टिविटी भी डिफाइन करते हैं। तो सब वेनिश हो गया क्योंकि बीच में इतना बड़ा ब्लॉक आ गया, कोई एक्टिविटी नहीं। So this part and CPM you have to redefine। अब उसमें कुछ एक्टिविटी हो ही नहीं सकती, तो कैसे हम टाइमलाइन को एडजस्ट करेंगे, उस कोस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या मेरे से प्रॉमिस किया था 45 लाख में फ्लैट दे दूंगा, क्या वो मुझे 45 में दे पाएगा, यदि नहीं दे पा रहा तो क्या सपोर्ट गवर्नमेंट से रहेगा। so many issues will be involved, so there are so many big challenges with the construction industries and profitability का क्या होगा, है ना। उसने भी सोचा होगा कि मैं इतना इन्वेस्ट करके इतना कमा लूंगा, अब वो कहाँ गई है, उसको कैसे मैनिपुलेट करेगा। सो ये फैक्टर है जिससे हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रीडिफाइन होगी। नाउ द डिमांड फॉर न्यू होम्स में नॉट बी पिकअप सून। ऐसा भी नहीं है, अब आप, मेरे को नहीं लगता हम में से कोई ऐसा होगा जो अभी लॉकडाउन खत्म होते ही फ्लैट बुक कराने चला जाएगा, है ना। उसको यही नहीं पता, क्योंकि उसको पता चल गया इन चीजों की कोई अहमियत नहीं है ना। इन दिनों में ये सोच के थोड़ा सा तो मानवतावादी रुख अख्तियार किया होगा उसने। इसी तरह क्योंकि रिकॉन्साइल इनकम फ्लो विद फ्यूचर पेमेंट्स, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में तो कंटिन्यूस फ्लो होता है ना। मटेरियल मंगाया, उसने भी उधार में दे दिया, फिर उसका पेमेंट किया, फिर जो डेवलपर के पास जो बायर हैं उनका पैसा आया, इधर उधर हो गया। तो एक फ्लो पूरी तरह सप्लाई चेन मनी की भी जो है वो ब्रेक हो गई। तो ये सारे चैलेंजेस हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ, जिसको आने वाले टाइम में फेस करना पड़ेगा। इसमें हम कहीं कंट्रीब्यूट कर पाए तभी मैं इन एरियाज को आपको एड्रेस कर रहा हूँ। इम्पैक्ट ऑफ स्लो डाउन इन एग्जीक्यूशन, प्रोजेक्ट कलेक्शन विल एडवर्सली अफेक्टेड, ठीक है ना, विल लीड टू अनरेस्ट अमंग बायर्स स्पेशली इन द रेजिडेंशियल सेगमेंट। अनरेस्ट तो होगा ही सही, नए बायर्स में भी होगा, जो पहले बुक करा चुके हैं उनमें भी अनरेस्ट होगा। एंड विल बी मोर रिलक्टेंट टू बुक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट। टेंडेंसी चेंज हो जाएगी, पहले क्या रहता था, जो मकान बन के तैयार होने वाला उसको बुक कराओ। अब क्या होगा, अब हमारी अप्रोच हो जाएगी जो तैयार है उसी को खरीदो, पता नहीं क्या होगा आगे, है ना। तो ये अब अप्रोच चेंज हो गई बायर की। नाउ द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऑलवेज ऑन द मेंटालिटी ऑफ द बायर्स, तो उसको वो स्ट्रेटेजी भी चेंज करनी होगी। इन टर्न दिस विल सेट ऑफ ए विशियस साइकिल। अब ये साइकिल क्या है कि जैसे नो वर्क नो लेबर, जब काम नहीं है तो लेबर नहीं होगी, लेबर नहीं है तो लिक्विडिटी नहीं होगी, लिक्विडिटी नहीं है तो कंप्लीशन भी नहीं होगा काम का, कंप्लीशन नहीं होगा तो नई बुकिंग नहीं होगी, नई बुकिंग नहीं होगी तो फिर काम नहीं होगा। विशियस सर्किल बन गया ये। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको ब्रेक करना, सप्लाई चेन को तो रीइंस्टॉल करना, पर इस सर्किल को तोड़ना। सप्लाई चेन ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड इक्विपमेंट, नेक्स्ट इशू जो है रिवर्स माइग्रेशन के बाद वो सप्लाई चेन का है। सप्लाई चेन के इशू को कैसे डिफाइन करें, नियर टोटल रेस्ट्रिक्शन ऑन लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन हैव डिस्टर्बेड सप्लाई चेन क्रिएटिंग स्केर्सिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। साइट पे रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, ट्रक नहीं चल रहे, है ना, देयर आर सो मेनी रेस्ट्रिक्शन causing a catch-22 situation। इससे भी एक catch-22 situation समझते हैं, because even if they pursued workers to return, अब मैं
मेरे पास दो प्रॉब्लम है ना, रिवर्स माइग्रेशन की और सप्लाई चेन की। अब मैं जैसे तैसे वर्कर्स को फैसिलिटेट करके वेजेस बढ़ा के इंसेंटिव देके उनको कन्विंस भी कर लूं कि आ जाओ भाई लौटा है, वो लौट भी आए, लेकिन बिना मटेरियल के आप करोगे क्या उनका? तो इसी तरह बिना मटेरियल को भी आप जैसे तैसे मैनेज कर लोगे, सप्लाई चेन को दुरुस्त करके, और लेबर नहीं आई तो फिर काम कैसे करें? तो ये इसको कहते हैं केस 22 सिचुएशन। तो ये बहुत मतलब थिंग्स आर नॉट सो सिंपल. We have to work hard on all the fronts to reinstall these construction industries which are the backbone of any country's economy, right? And जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कहते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल किसी भी रूप में हम सबका रोल बहुत अहमियत रखता है। तो इसलिए मेरा मन में एक इच्छा थी कि मैं आपको इन इश्यूज से थोड़ा अवगत कराऊं, so that you can think of in that direction. हर आदमी की अपनी इंटेलिजेंस, कैपेबिलिटीज, डिवोशन अलग अलग तरीके का है। अगर वो किसी तरह से इस चीजों से he can come out, so that will be a great contribution to the society. नॉट कि मतलब वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम सोल्व की या छोटी प्रॉब्लम सोल्व की, सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम विल हेल्प इन ब्रिंगिंग द सिचुएशन टू नॉर्मल। सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक की बात करें तो ये मान लें कि दिस इज कंटिन्यूअस सप्लाई इज द की टू द सक्सेस ऑफ एनी प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। कंटिन्यूअस सप्लाई जो अब ब्रेक हो चुकी है ना। बिग चैलेंज क्या है? फिक्सिंग सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक। इनको वापस से कैसे हम री इंस्टॉल करें, टूटी हुई चेन को कैसे, कड़ी को हम जोड़ें, दैट इज ए बिग चैलेंज। इंपोर्ट फैक्टर भी इसमें आ रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ इक्विपमेंट्स, कुछ मशीनरी हाई लेवल की हमने इंपोर्ट भी करनी होती है, ऑफशोर इक्विपमेंट भी होते हैं जो इस लॉकडाउन पीरियड के पहले या तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में थे या डिस्पैच की स्टेज में, तो जो जहाँ था यथा स्थिति बन गई। अब उनको कैसे लाया जाए, क्योंकि उनके बिना उस प्रोजेक्ट का सारा पार्ट सीपीएम उससे डिसाइड हुआ था कि वो इक्विपमेंट होगा, इतने दिन में काम पूरा हो जाएगा। अब वो इक्विपमेंट ही नहीं आ पा रहा। सो दिस इंपोर्ट फैक्टर विल आल्सो बी ए मेजर चैलेंज फॉर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. So if time taken to fix up the supply chain is prolonged, the impact could be more severe on the project timeline, cost and profitability, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया. Turning challenge into opportunities. अब प्रश्न है ये मेजर, there are so many things related thing, फाइनेंशियल को ज्यादा मैंने टच नहीं किया है ना. I am talking about reverse migration and the supply chain, है ना. तो अब टर्निंग चैलेंज इनटू अपॉर्चुनिटीज, अब क्या क्या अपॉर्चुनिटीज नई क्रिएट होंगी इन चैलेंजेस को मीट करने के लिए. तो इसमें हम देखें तो चैलेंजेस को यदि मैं समराइज करूं तो ये है चैलेंजेस अपने कोविड-19 को लेकर, रिवर्स माइग्रेशन, इंटरप्टेड सप्लाई चेन, चेंज इन माइंडसेट. जैसा मैंने बताया ना, अब हमारे लोगों की माइंडसेट में भी चेंज आ गया है विद रिगार्ड टू प्लानिंग, विद रिगार्ड ऑफ द हाउस, है ना. आपकी किस तरह का मकान चाहिए, कहते हैं ना सपनों का महल, तो वो सपने अब चेंज हो गए हैं. तो जब डिमांड चेंज हो रही है तो उस चीज को तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ध्यान में रखना पड़ेगा. तो चेंज इन माइंडसेट, फाइनेंशियल क्राइसिस फॉर बोथ, बायर के लिए भी और सेलर के लिए भी, दोनों के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति है. सोशल डिस्टेंसिंग भी कब तक मेंटेन करनी है, ये भी एक इशू है, हेल्थ इशू. तो ये इतने सारे चैलेंजेस जो हैं वो हमारे को एज सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल दिखाई दे रहे हैं. तो अब इनमें अपॉर्चुनिटी क्या ढूंढें, कैसे ढूंढें, ये एक प्रश्न है. तो अब जैसे रिवर्स माइग्रेशन का सब्स्टिट्यूट क्या होगा, वी शुड द रीबैलेंसिंग ऑफ वर्कफोर्स. क्योंकि जैसा मैंने बताया, जरूरी नहीं है कि जितनी लेबर हमारी लौटी है वो वापस की वापस आ जाए, नहीं आएंगे, है ना. बहुत मुश्किल से उन्होंने गांव छोड़ा था, शहर की ओर भागे थे, अब उनको शहर की जिंदगी का एहसास हो गया क्या है, तो हो सकता है वो वापस गांव में पहुंच के वापस आना ही ना चाहे, है ना. तो वही बड़े बेआबरू होकर निकले थे तेरे पीछे से हम, तो इस तरह वो गांव में लौटे हैं. तो फॉर रीबैलेंसिंग ऑफ वर्कफोर्स हमें मैकेनाइजेशन पे जाना पड़ेगा, है ना, ज्यादा ऑटोमेटिक. हम अब हमारे को ये हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है पॉलिसी मेकर के लिए, कि अब हमें उन चीजों का ज्ञान अधिक देना होगा सिलेबस कंटेंट में
है ना, इक्विपमेंट जिसको कहते हैं ना, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, जो हम अभी केवल वो क्रेन और वो पढ़ के और 2-4 मशीनें पढ़ के उसको खत्म कर देते थे। अब हमें एक सिविल इंजीनियर को इन सब का ज्ञान देना भी आवश्यक है कि ऑटोमेट मैकेनाइजेशन कितना हो चुका है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का, है ना। तो ये चीजों का हमें सब जुड़ी हुई प्रॉब्लम है। ऑटोमेशन कितना हम बिना लेबर के काम अधिक से अधिक ऑटोमाइज कर सकते हैं, डिजिटाइजेशन कितना हम डिजिटाइज कर सकते हैं। और फिर एक और नई चीज आई, क्योंकि अब ऑन साइट कंस्ट्रक्शन के लिए लेबर की अधिक लोगों की आवश्यकता होती है, तो हो सकता है कि ये जो मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन है वो एरिया ज्यादा डेवलप हो जाए, है ना। क्योंकि हम वहां पर क्या है कि कम से कम रिसोर्सेज में बेटर क्वालिटी कंट्रोल करते हुए डिफरेंट यूनिट्स को कास्ट कर सकते हैं। ऑटोमाइजेशन एक फैक्ट्री में जितना अधिक पॉसिबल है साइट पे नहीं है। तो ये सब चीजें हैं जो इन सब एरिया में जो है आपका वो जो क्या कहना चाहिए, लोगों की सोच, लोगों का इन्वेस्टमेंट, लोगों का डाइवर्जन उस तरफ डाइवर्ट करेगा, है ना। लोगों को इस ओर ध्यान जाएगा, मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, डिजिटाइजेशन कैसे किया जाए। देखो सिविल इंजीनियरिंग में क्या है कि कॉन्टेक्ट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, सोशल कॉन्टेक्ट, जिसका रेस्ट्रिक्शन आ गया राइट फ्रॉम प्लानिंग पार्ट। आप आर्किटेक्ट के पास जाएंगे, 5 मीटिंग करेंगे, 10 मीटिंग करेंगे, आपकी पत्नी भी जाएगी, बच्चे भी जाएंगे, नहीं यार मुझे ये चाहिए, यहाँ पर ये चाहिए, ये सब आपस में बातचीत से होता है। अब उस चीज को अवॉइड करते हुए आप अपनी कैसे अपनी जो सोच है उसको बता पाएंगे, है ना, और कैसे वो आपको समझा पाएगा ऑनलाइन। तो ये एक बहुत दुविधाजनक स्थिति है जिसमें हमें चेंज लाने, अपने आप में चेंज लाने के लिए कई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा, है ना। जैसा मैंने बताया, कहना आसान है कि ब्लैक बोर्ड टीचिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन सब्स्टिट्यूट हमें ढूंढना पड़ेगा। उसको कितना इफेक्टिव बना सकते हैं इस पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। और नेक्स्ट है अब इसमें रिवर्स माइग्रेशन की वजह से अब हमारी जो प्रॉब्लम आएंगी, स्टेगरिंग ऑफ लेबर वर्किंग आवर्स में भी अडॉप्टेड, हम इसको कैसे मीट कर सकते हैं। अब 24/7 काम चलाएं, है ना, और डिफरेंट शिफ्ट में चलाएं वहां पर, ताकि हम लेबर की स्टेगरिंग कर सकें। पहले एक जैसे फ्लैट बनते थे तो एक ही फ्लैट पे सब लग जाते थे, तो 3-4 फ्लैट का साइमल्टेनियसली जो दूरी पे हैं एक जैसा काम एक साथ स्टार्ट करें। क्योंकि उसका पर्पज क्या रहता था कि एक तरह की मशीनरी एक ही बार काम में आए, ताकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ दोज इक्विपमेंट्स कैन बी अवॉइडेड। पर जब आपको स्टेगरिंग करनी है तो इस पे जाना पड़ेगा आपको, तो हो सकता है चीजों की कीमत बढ़ भी जाए। द डेवलपर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स में फाइंड द वर्कर्स by offering extra wages or incentive including safe working condition। अब इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अब वो मजदूर ये जो डेली वेज के कि कभी भी किसी को बुला लिया शायद उससे काम नहीं चले। यदि आप बहुत बड़े बिल्डर हैं तो हो सकता है आपको लेबरर को भी परमानेंट अपॉइंटमेंट देना पड़े, है ना, चाहे काम चल रहा है कि नहीं उसकी तनख्वाह सुनिश्चित करनी पड़े, तभी वो रुक पाएगा आपके पास। और कैजुअल लेबर हो सकता है उससे भी महंगी पड़े आपको, है ना। तो ये सब चीजें हैं जिसमें चेंजेस आएगा। देखते हैं कि आने वाले समय में लोगों की सोच किस तरह की रहती है ना, रिक्वायरमेंट किस तरह बदलती है, ये परिस्थितियां किस तरह हमें हमारे काम को धरातल पे प्रभावित करती हैं, है ना। कई चीजों को हम एनविस भी नहीं कर पाते, जब हम रियलिटी में फेस करेंगे तो कई चीजें सामने और आएंगी निकल के, तो उसके सॉल्यूशन भी हमें साइमल्टेनियसली ढूंढने होंगे। देन द ड्रास्टिक पॉलिसी चेंजेस जो अलग डायरेक्शन में आएंगे कि हमें सप्लाई चेन के मामले में अभी क्या हमारी डिपेंडेंसी है दूसरी एजेंसीज पे, तो अब इसका एक रास्ता क्या, आप लोकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना शुरू करो, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत ही नहीं, है ना, अधिक से अधिक। तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोला कि भाई लोकल वोकल की जो बात करी वो यही है ना, कि हम जितने से ज्यादा स्थानीय प्रोडक्ट को बढ़ावा देंगे, ठीक है। मतलब जो प्रोडक्ट बनाए वो नॉट फॉर द मासेस बट बाय द मासेस होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोग मिलकर किसी प्रोडक्ट को बनाएंगे तो उसमें अपना समृद्धि ज्यादा होगी, रादर देन एक प्रोडक्ट मासेस के लिए बनाएंगे। अभी यही हो रहा है, एक प्रोडक्ट बनता है मासेस के लिए बनता है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसके लिए सप्लाई चेन चाहिए होती है ना। तो पहले भी मकान बनते थे, कहीं से कोई सामान नहीं आता था, जो लोकली अवेलेबल मटेरियल है उसी को यूज में लेके बनाए जाते थे और उसी हिसाब से टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती।
ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शीघ्र ही अहमियत बढ़ने वाली है इसकी। इंफॉर्मेशन शेयरिंग को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि अफवाहों को रोका जा सके, है ना। एक दुरुस्त माध्यम होना चाहिए इंफॉर्मेशन शेयरिंग का। थ्रस्ट विल बी ऑन द लोकल मैन्युफैक्चरिंग, जैसा मैंने आपको बताया। रोल ऑफ इंटीरियर डिजाइनर एंड आर्किटेक्ट विल ड्रास्टिकली चेंज और इंक्रीज। आर्किटेक्ट का तो टास्क चेंज होगा और इंटीरियर डिजाइन का काम बढ़ेगा, क्योंकि सारे ऑफिस सेटअप, क्लासरूम, इन सब में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएंगे। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, तो यहाँ जो इंटीरियर डिजाइनर होते हैं उनका रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है। और वो सजेस्ट करेंगे कि एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे, जैसे अभी वास्तु के हिसाब से परिवर्तन करवाते हैं ना, जब लोगों का ध्यान गया कि वास्तु भी कोई चीज है, तो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में कम से कम खर्चे में उसको वास्तु के अनुरूप कैसे बना सकूं मकान को, वो भी चलता है। तब ये चलेगा सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से मैं मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे और इफेक्टिव और यूजफुल बना सकूं, तो यहाँ इंटीरियर डिजाइनर का रोल बढ़ेगा। तो अब स्टूडेंट्स को ये भी नजर आ रहा होगा कि आगे आने वाले एरिया क्या है उनके लिए, है ना। तो आप उस डायरेक्शन में सोचेंगे। जब मैंने जैसा कहा कि विलिंगनेस इज ग्रेट, नो डिफिकल्टी इज ग्रेट, है ना। तो आप में यदि इच्छा शक्ति है तो आप किसी भी डायरेक्शन में लग जाएं, काम करें, सफलता जरूर मिलेगी। एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, ये तो एक ऐसा विषय है जिस पर अलग से ही चर्चा की जाए। कोरोना वायरस इज वेकअप कॉल फॉर ऑल ऑफ अस टू टर्न आवरसेल्व्स इनटू रेस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल विद हाई मॉरल वैल्यूज। इन सब की हमें आवश्यकता है, जो हमें कोरोना ने एक कॉल दी है, हमें सूचित किया है, ठीक है। So finally we do hope that together we can make this sorry okay, finally we do hope that together we can make this happen, and we'll have more responsible and dedicated professionals who will make the society proud. यही आपसे अपेक्षा है, इंक्लूडिंग मी। हम सबसे, आप सबसे यही अपेक्षा है। लेकिन हमारी जो एग्जिस्टिंग सोच है उसमें अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है, बट द प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ अस इज दैट वी मे नॉट नो अंटिल द डेंजर इज राइट ऑन अस। हम तब तक जब नहीं जागते जब तक सवेरा नहीं होता। ये एक सोच है, उससे हमें बाहर आना होगा और शायद सवेरा होने से पहले जागना पड़ेगा, है। तो वो वाली चीज है। वी बिलीव दैट रिकवरी आफ्टर द क्राइसिस वुड बी स्ट्रॉन्ग एंड फॉर इजियर फॉर सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल एज कंपेयर टू अदर सेक्टर्स सच एज ट्रेवल एंड टूरिज्म। एक मानव प्रकृति है कि दूसरे की मुसीबत जब देखते हैं बड़ी, तो अपनी मुसीबत छोटी लगने लगती है। केवल उसी लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। हम सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल के साथ ये दिक्कत है, यदि आप ये ट्रेवल और टूरिज्म सेक्टर को देखेंगे तो शायद उनको हमसे भी अधिक परेशानी का सामना करना पड़े। तो निश्चित रूप से इस सोच से आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ प्रेरणा मिलेगी। और लास्ट में मेरा फाइनल मैसेज ये है कि लर्न द लेसन नाउ बिफोर इट गेट्स टू लेट टू रेक्टिफाई अवर मिस्टेक, है ना। बच्चों, तुम्हें भी समझ में आ रहा होगा, परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद यदि गलतियों में तो बहुत कुछ खो चुके होंगे, है ना। तो लर्न द लेसन नाउ बिफोर इट गेट्स टू लेट टू रेक्टिफाई आवर मिस्टेक। केवल उतना ही प्रलोंग करें चीजों को जहां तक गलतियां हमारे ऊपर ना सुधरने का मौका है। एंड विद दिस थैंक यू ऑल फॉर द पेशेंस, हीरिंग एंड बीयरिंग, कुछ भी कह लूं मैं, झेलने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। So far we have fought the situation well and are hopeful that we will emerge as winners from the period. Thank you. Thanks dear. And thank you Purnima Institute for providing me this nice